Yeah. So how to prepare for next remaining days? That is the one. Still 4-5 days are remaining. What to do in D day? Real exam में क्या क्या करना है? That is what we will be discussing. How to attempt the paper, what not to do, what to do. All these parameters we'll be talking about. Okay. So whatever preparation so far you people have done, अब exam का time है. Preparation time is over. It's now time for the mock test and the other parameters. Okay. Okay, so we know 10th is the exam date. First of all, let's talk about the exam. So 10th of August is the exam date. This is what declare, and online mode exam will be. Okay. And the rest of the Q&A part we'll do in the last. First, let me give the brief about the complete. Let me finish my session. Then whatever query doubt people have, you can ask in the last. Okay. But with regards to the slide, with regards to the what we are learning, if you have any doubt, then you can ask me then and there. Okay. Okay. So very first, so far, whatever preparation we have done, it's high time to go for the revision, mock test, analysis, and your GK part. Okay. In GK, last time also I had mentioned this part. Current affairs को लेके there are 2000 plus questions का PDF. Okay. On your portal, so kindly complete that part. Current affairs को लेके, static को लेकर के there are 1000 plus questions, and business GK को लेकर के there are 500 plus questions. So kindly finish all these questions which are very very important. Okay. So in your, as the exam is online and they expect you to be finish the paper on time, obviously I also expect, and there should not be any kind of a technical glitch. So make sure whatever hardware software requirement they have mentioned, that has to be there. The important part is nothing but while you are writing the test, you need to be clear, your worksheet has to be very clear. Worksheet, I mean to say rough work. जितना रफ वर्क कम करोगे उतना फास्ट रहोगे, उतना टाइम कम वेस्ट करोगे ड्यूरिंग योर एग्जाम. सो द क्लीनर द वर्कशीट द फास्टर यू विल बी. ओके. सो मेक श्योर रफ वर्क जो है वो बहुत ही कम करो अनलेस इट इज रिक्वायर्ड. डोंट ट्राई टू शो ऑफ कि मैं रफ बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड आई एम राइटिंग डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क. ये सब चीजें आती है तो वो सब नहीं करना है अपने को. वी शुड बी क्विक. ओके. सो आपका स्कोर जो आएगा डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर एंड द रैंक which IHM you will end up with वो decide होगा. No, rough work के लिए there is a flexibility, but then to जो आपके examiners होंगे, I mean you can ask them, but rough paper is allowed in all the exams. ठीक है. So make sure जितना हो सके limited work rough work करो. It require ideally in maths only. बाकी के topic में like logic के some of the topic में लगेगा, बट ट्राई करो कि जितनी मेहनत हमने शुरू से की है प्रिपरेशन को लेकर के मेंटली सॉल्व करने की, वो जो हैबिट आपने बिल्डअप की है उसको इम्प्लीमेंट करो. एंड बेस्ट पार्ट टू इम्प्लीमेंट इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट में ट्रायल एंड एरर करके चेक कर लो. ऑन योर पोर्टल देयर आर 10 मॉक टेस्ट, फर्स्ट 5 एंड देन 5 to 10, तो 6 to 10. तो ये वाले अगर कंप्लीट हो गए तो 6 to 10 पे जंप करो एंड राइट द मॉक टेस्ट. ओके. सो द नेक्स्ट रिमेनिंग डेज one mock test you have to write on daily basis. 2 to 5 का एग्जाम का टाइम है, सो ये टाइम स्लॉट में आपको एग्जाम मॉक टेस्ट भी लिखना है सो दैट योर बॉडी कैन वर्क अकॉर्डिंगली ऑन द एग्जाम डे. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग योर mock test and your real exam, rough work you need to be you need to keep with you. So rough work we required. Have a water bottle, कोई सा भी ऐसा वाटर बॉटल या कैसे भी वाटर बॉटल अपने पास रखो. यू 3 घंटे का पेपर है तो प्यास लगेगी, राइट, यू गेट थर्स्टी. एंड या वॉच वगैरह मॉक के टाइम पे ऑलरेडी देयर इज अ क्लॉक वॉच, बट अगर आपको रखना है तो यू कैन कीप इट. ठीक है. सो
वॉच, वाटर बॉटल, रफ वर्क। वाटर बॉटल इज इम्पोर्टेंट क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता है, इतना दिमाग चला लेता है, थोड़ा पानी, एक 5-10 सेकंड का ब्रेक लेना है आपको बीच में, एंड देन हैव वाटर, फिर रिलैक्स, फिर से चालू करो एग्जाम। ठीक है, कंटिन्यूसली 3 आवर्स लगे रहोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। एंड सेम प्रैक्टिस यू हैव टू डू इन द मॉक टेस्ट। जो अभी 5 दिन बचे हुए एग्जाम्स को लेकर जो भी मॉक लिखोगे, सब में सेम हैबिट अप्लाई करनी है। ठीक है। हाँ, ट्रांसपेरेंट बॉटल बोला है, आई नो। तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉटल। बिस्लेरी रख लेना यार, क्या प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंट है वो। ओके, यू कैन यूज स्मार्ट वॉच बट नॉट रिक्वायर। ठीक है, स्मार्ट वॉच नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल बिकॉज टाइमर इज ऑलरेडी देयर ऑन स्क्रीन, सो वॉच की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर acknowledgement you can keep. Yeah, so next is about the, in next 5 days we have one day, in one day 24 hours, so overall 120 hours we have in our hand. If we can devote 50 hours, if we can devote 50 hours overall, मतलब 10 hours per day, तो भी 50 hours की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। What preparation, what time and how much I can do? So time I told you 50 minutes, 50 hours is the time which you can maximum devote, या इससे ज्यादा भी डिवोट कर सकते हो, बट ओवरऑल अपने पास 120 आवर्स अभी है 5 days। सो हाउ मच यू कैन प्रिपेयर, एज आई मेंशन अर्लियर, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। ओके, ओके, so in next remaining days you have to work rigorously on the revision part, all the maths formula concept which you have done, all the tricks and grammar rules with regards to English। जीके को लेके तो continuously जो boosters है आपका, it is high time for the GK basically, and obviously mock test। So you have to give mock test, analyze the mock test, GK workout, concept revision, all these parameters you have to work on। Very very important, don't get panic that exam is in next 5 days, so uh, my preparation is not that thorough, ऐसा लग रहा है कि कुछ आता ही नहीं है। This is the kind of a feeling sometimes comes, and sometimes you have prepared very well but you are not confident, so you need to be confident and keep high motivation। So exam online है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। इट्स जस्ट दैट कि सेंटर पे जाके लिखना था एग्जाम, और अब एग्जाम ऑनलाइन लिखना है। यू जस्ट हैव टू सेट अप ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दैट्स ऑल। ओके, so in next 50 days this is what the वर्कआउट यू हैव टू डू। 9th डे, उत्कर्ष आस्किन सर लास्ट डे क्या करना है 9th को? सो 9th को आई सजेस्ट एक मोटिवेशनल मूवी देख लो। मोटिवेशनल मूवी आई स्ट्रांगली सजेस्ट, रिलैक्स वाली चिल मूवी देख लो। द मूवी आई सजेस्ट यू द पर्सूट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, सो लास्ट डे 9th को चिल रहना, एकदम कोई टेंशन नहीं है, पूरी प्रिपरेशन होगी। अब लास्ट डे एक दिन में पढ़ के कुछ रॉकेट साइंस नहीं होगा। सो इट्स लाइक 9th को आप चिल रहो, टेक योर प्रॉपर स्लीप, एकदम रिलैक्स रहो, कोई टेंशन नहीं। सो 9th को जस्ट वॉच वन मूवी, जीके का जो रिवीजन वगैरह अगर आपको करना है तो वो कर लिया आपने, एंड ट्राई टू स्लीप अर्ली, मतलब 10 बजे तक तो सो ही जाओ, सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मतलब 8 o'clock तक उठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 8 आवर्स की स्लीप पूरी होनी चाहिए। टाइम, ठीक है, तो 6, 7, 8 जो भी आपको टाइम है वो टाइम पे उठ जाओ। 8 आवर्स की स्लीप अच्छी होनी चाहिए। उस दिन कुछ भी
उसके एक दिन पहले या तो एंड उस दिन कुछ अनहेल्दी नहीं खाना है अपने, लाइक तबीयत अपनी अच्छी रहनी चाहिए, आवर हेल्थ शुड बी ओके, अदरवाइज एग्जाम नहीं लिख पाओगे एंड परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो नाइन्थ को नो मॉक टेस्ट, ऑन नाइन्थ आई रिपीट नो मॉक टेस्ट। जो भी आपको कंप्लीट करना है वो 8 तक कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल, जितने भी प्रिपरेशन होते हैं। सो 5 6 7 8, सो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 mock tests you can write still, and don't get panic if your score is not coming great, it's okay, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट राइट ऑल द मॉक टेस्ट। उससे उसके अंदर आपको जीके के अपडेटेड क्वेश्चन जो मिलेंगे, टू गेट टू नो योर मॉक स्ट्रैटेजी। 4 to 5 days में ये डिसाइड कर लो कि हाउ आई शुड बिल्ड अप माय स्ट्रैटेजी, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, ऑल दिस पार्ट। Okay, so yeah, very important software hardware specification. You must have got the mail from NTA regarding this. So एक बार उसको go through कर लेना। Exam you can write laptop या तो फिर computer पे लिख सकते हो exam. So this is what you have to arrange, and rest of the instruction kindly read on your mail. Okay. Yes, Utkarsh, it is there. और अगर मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके जो जीके वाले क्वेश्चन है वो पूरे एक बार गो थ्रू कर लो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच पीपल आर आस्किंग, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सो अटेम्प्ट, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, एंड सेक्शन वर्सेस टाइम क्या लेना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट दैट पार्ट। So section wise all time, I mean, what order you people follow? Write in the comment box, chat box में लिखो कि क्या क्या order आप follow करते हो, how you attempt your paper, and what is the maximum score coming up. Last session I mentioned this part, that start writing full rigorously mock test. So what is the highest score and what is the order of attempt, so that we can discuss, and you other, I mean, we can take the idea from other people also. Service sector English, GK, maths, then reasoning. Okay, service sector English, GK, logic, maths. Okay, service sector English, logic, GK and maths. Service sector English, logic, maths and GK. सर्विस सेक्टर लॉजिक मैथ्स। ओके, सबने सर्विस सेक्टर पहले ही चालू करना है, सही है। जीके इंग्लिश सर्विस सेक्टर लॉजिक मैथ्स 464 इज द हाईएस्ट। ओके, सर्विस सेक्टर इंग्लिश मैथ्स लॉजिक जीके। ओके, 600 plus coming up. Okay, first service sector English logic GK maths, one English GK reasoning service sector maths. Okay, what is the highest score, Utkarsh and Subhadeep? What is the highest score coming up in the mock test? अभी तक जितने mock लिखे highest क्या आया है score? Service sector English reasoning maths. Okay, out of 200 163 correct. Okay, 600 plus score है, 600 plus coming up. Okay, so the great 620 is the highest. Okay, okay, Utkarsh, kindly work on the area where you find not, अभी तो नया टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना, जो प्रिपरेशन की है
उसको और बेटर करो एंड जीके पे काम करो. 530, ओके. 521, ओके. 600 प्लस, ओके. सर्विस सेक्टर, इंग्लिश, लॉजिक, ग्रेट. ओके. ओके. सो बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स नेगेटिव में चला जा रहा है. इफ दिस इज हैपनिंग, सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विथ रिगार्ड्स टू योर एक्यूरेसी. So whatever question you are attempting, it has to be correct. मटका तुक्का नहीं मारना है because there is a negative marking, -1. Okay. So order of attempt has to be the GK, English, logic, service sector, maths. This is according to me. This might change individual to individual. जैसे आप लोग का भी change हो रहा है. Yes, Aditya, you will get. Okay. So 30 question English, GK के लिए 15 minutes time is more than sufficient. 60 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए 45 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट. 30 मिनट्स लॉजिक के लिए 30 मिनट्स का टाइम, इनफैक्ट मैंने ज्यादा दिया, ये 25 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा दिया. एंड सर्विस सेक्टर को लेके 50 क्वेश्चन तो 45 मिनट्स अगेन ज्यादा दिया हुआ है. 30 क्वेश्चन मैथ्स को मैंने 40 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, मतलब मोर देन 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन. एंड यू हैव टू कीप 5 मिनट्स का बफर जस्ट टू चेक कि भाई कोई मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन किया हुआ है, तो कोई क्वेश्चन पे वापस जाना है, कुछ रह गया है तो आपको वापस से एक बार पेपर को गो थ्रू करना है. सो दिस इज व्हाट द, फॉर दैट पर्पस 5 मिनट्स का बफर यू हैव टू कीप. ओके. सो you need to follow, you need to have the section wise time breakup also कि जीके के अंदर the moment 15 मिनट हो गया, immediately I need to jump to other section. Okay. And along with this I advise कि if you can save 5 minutes from here, किसी भी section से अगर 5 minutes और save कर सकते हो, so utilize these 5 minutes. And when you start the paper, सारे क्वेश्चन को फटाफट 5 मिनट्स में गो थ्रू करके देख लिया आपने, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि पेपर का लेवल क्या है. 200 क्वेश्चन है, ऑल्दो इट इज हाई, मतलब या तो चैलेंजिंग भी है कि 200 क्वेश्चन को 5 मिनट में पूरा गो थ्रू करके देखना. अगर ये कर सकते हो तो डू दिस पार्ट. अदरवाइज when you start one first section, the way I have mentioned, order of attempt, round 1, round 2, round 3. आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई स्ट्रैटेजी चेंज करनी है लास्ट मोमेंट पे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सब चीजें ऐड ऑन करोगे तो शायद मार्क्स इंप्रूव हो सकता है. राउंड 1 में व्हाट यू हैव टू डू, जैसे कि जीके है, 30 क्वेश्चन है, 2 मिनट्स का टाइम दो, सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो. यू विल गेट टू नो कितने क्वेश्चन इजी हैं. तो व्हेन यू विल 2 मिनट के क्वेश्चन को रीड करोगे, सो जो बहुत इजी होंगे उसको आप इमीडिएटली मार्क कर दोगे विद इन 5 सेकंड. एंड जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ इसको देखना पड़ेगा वापस से, नेक्स्ट 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 करके 2 मिनट के अंदर पूरा 30 क्वेश्चन आपने गो थ्रू कर लिया. यू विल गेट टू नो कि ये सेक्शन इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, मतलब इसमें मैं कितना परफॉर्म कर सकता हूँ. सो दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम, ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने को, 2 से 3 मिनट में समझ में आ जाएगा. सो जो बचा हुआ जो टाइम है वो आप बेटर जो अच्छे क्वेश्चन है उसको उसमें इन्वेस्ट करोगे, मतलब उस सेक्शन को लेकर के. एंड यू विल बी अवेयर ऑफ ओके ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ, और स्कोर भी अपना मैक्सिमाइज होगा. सो मतलब बेसिकली राउंड 1 में आपने क्वेश्चन सारे देख लिए और 2 से 4 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वाले. फिर राउंड 2 में जो क्वेश्चन पे अपने को एक्चुअली में सोचना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके जाना है, तो वो कर सकते हैं. राउंड 3 इज फॉर द क्वेश्चन जो टाइम लेने वाले हैं आप. ओके. My exam is getting over 1 hour early. क्या बात है? If you are within 2 hours, you are finishing the paper, so very good. But make sure score has to be there, no? तो score भी आना चाहिए हमारा अच्छा. So for example, अपने इंग्लिश चालू किया, 60 क्वेश्चन है, 3-4 मिनट का टाइम दे दिया अपन ने, या तो 5 मिनट्स का टाइम दे दिया. आई एम जस्ट गिविंग द हाइपोथेटिकल एग्जांपल.
पूरे इंग्लिश के 60 क्वेश्चन को आपने गो थ्रू कर लिया, ओके। And once you're done with all the 60 questions, you might have solved 5 to 6 question or 10 question which are very very easy, okay. So वो क्वेश्चन आपने इमीडिएटली सॉल्व कर लिया, एंड उसके बाद राउंड 2 में वो क्वेश्चन सॉल्व करने आए जहाँ पे आपको पढ़ के समझ में आया था कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ. सो व्हेन यू रीड इन क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड, आधा आपने सॉल्व माइंड मेंटली कर लिया. दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी. व्हेन यू सी क्वेश्चन फॉर 5 सेकेंड, तो आधा सोल्यूशन सॉल्व वो माइंड में हो जाता है, एंड यू विल रिमेम्बर द क्वेश्चन ऑल्सो कि ये कैसे टैकल करना है, ठीक है. और जो क्वेश्चन स्किप टफ है तो उसको स्किप कर सकते हो ऑब्वियसली. नेक्स्ट बटन तो है हमारे पास. So this is what the order of attempt one need to follow, and this is what time which one should spend on particular section. This order of attempt can be vary from individual to individual, but this is what GK पहले अटेंड करोगे. इसका रीजन है GK थोड़ा सा लाइट वेट है, तो पता है तो पता है, तो नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते. इंग्लिश में यू हैव टू रीड द डेटा. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ एनसीएचएमसीटी जेडब्ल्यू का एग्जाम का कि इंग्लिश का लेवल इज वेरी वेरी इजी. इनफैक्ट एंटायर पेपर इज इजी एक्सेप्ट द जीके, ठीक है. सो वंस यू डन विद द इंग्लिश, देन लॉजिक. फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, ठीक है. एंड फिर सर्विस सेक्टर इज लाइट वेट टॉपिक. तो 2 लाइट सेक्शन, उसके बेस में आप जो टफ सेक्शन है थोड़ा सा, या जिसमें ज्यादा ब्रेन लगने वाला है, उसको स्क्वीज कर रहे हो. दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ठीक है. बट मेक श्योर इंग्लिश को डू नॉट अटेम्प्ट इन द लास्ट. इंग्लिश को लास्ट में अटेम्प्ट नहीं करना, बिकॉज इन इंग्लिश यू हैव टू रीड द डेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू मार्क द आंसर. तो अगर रीड लास्ट में करोगे अगर सेक्शन को, सो यू विल बी इन हरी, और फटाफट अगर पढ़ोगे तो उतना चीजें समझ में नहीं आएगी, एंड हाई चांस है कि क्वेश्चन रॉन्ग मार्क करोगे. इफ कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या तो कंफ्यूजन में है तो कैसे करें. सी इफ यू आर स्टक इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्ट नहीं करना. बट अगर आपको क्वेश्चन में ये लग रहा है कि हाँ मैं 50-50 है अगर, तो फिर आई कैन से कि हाँ स्मार्ट गेस से आप जा सकते हो. बट बिल्कुल भी क्लू नहीं मिल रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट छोड़ देना, क्वेश्चन मत सॉल्व करना. बिल्कुल नहीं पता तो डोंट टेक चांस, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव मार्किंग, हाउ दिस वर्क. सो लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट. नेगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, एंड इफ इट इज रॉन्ग देन इट इज -1. अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो ये 4 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और -1 भी जाएगा, मतलब पूरे मिला के 5 मार्क्स आपके जा रहे हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सो यहाँ पे मटका तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा, वो करना भी मत, ओके. टिप्स फॉर द कॉन्ट सेक्शन. टिप्स फॉर द कॉन्ट सेक्शन, ओके, which is my favorite section all time. So tips for the quant section. Obviously इसको तो 3 राउंड में सॉल्व ही करना, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3. दिस इज व्हाट आई फॉलो. पहले राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सबसे इजी है और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है. लेट्स से अरिथमेटिक इज माय फेवरेट टॉपिक, तो अरिथमेटिक से जो जो इजी इजी वाले क्वेश्चन है वो वाले पहले सॉल्व कर लिए मैंने. उसमें भी कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, वो मेरे राउंड 2 में आएंगे, बट एटलीस्ट मुझे इजी इजी वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, जो मैं लास्ट तक शायद नहीं पहुंच पाता. सो इसलिए मैंने पूरा 30 क्वेश्चन को देख भी लिया और इजी वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर लिए फॉर द मैथ्स. फिर सेकेंड राउंड में, राउंड 2 में व्हाट यू कैन डू, जितने क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हैं उसको करो. एंड राउंड 3 में जो क्वेश्चन आता ही नहीं है छोड़ना है. सो सी ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हो. यू कैन सी द डेटा कि कहाँ से कितना से जंप हो रहा है, वेरी कर रहा है, जो अपने लेक्चर में सिखा हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई योर स्ट्रेटेजी, ठीक है. और एक और है, अगर 50-50 पे अगर क्लोज हो रहा है तो एक रॉन्ग एडवाइस है, सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ फॉर योर नॉलेज. बी एंड सी आइडली जो मेजर आंसर ऑप्शन होते हैं, आंसर चॉइस, वो बी और सी ऑप्शन होती है मैक्सिमम. बट इस पे ट्रस्ट मत करना जो मैं बोल रहा हूँ, अपना मतलब सॉल्व करके जो राइट है उस पे जाना. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जब आप 2 ऑप्शन पे स्टक हो गए तो देन यू कैन डू दिस बी एंड सी वाला जो बताया मैंने. नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी एक्सप्लेन. इफ क्वेश्चन इज रॉन्ग देन -1 मिलेगा, बट वो क्वेश्चन के जो 4 मार्क्स का वेटेज था, क्वेश्चन राइट होने पे 4 मार्क्स मिलता है, वो तो जाएगा ही, और नेगेटिव मार्किंग -1 की होगी. सो मेक श्योर कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए.
ओके, सो नेक्स्ट रिमेनिंग डेज ये टारगेट ले लो। वो जो भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है ना, उसमें वो फ्लाइट में होता है भाग फरहान अख्तर, एंड ही गो टू हिज कोच एंड आस्क की जो फाइनल जो रनिंग का जो रिकॉर्ड था वो क्या था, तो 45.9 इसके कोच ऐसा बताते हैं। सो फॉर यू इट इज 650 प्लस, 650 प्लस लेके आओगे, आईएचएम मुंबई दिल्ली मिलेगा, बाकी जो भी आईएचएम में चाहिए एडमिशन सब में एडमिशन मिलेगा। सो वी नीड टू हिट 650 प्लस। सो यू हैव 180 मिनट्स का टाइम। ये 180 मिनट्स में आपने पूरे साल जो पढ़ाई की है वो ये 180 मिनट डिफाइन करेगा, और आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो ये 180 मिनट में वो डिफाइन करेगा कि आपको कौन सा आइटम मिलने वाला है एंड व्हाट रैंक यू विल एंड अप विद डाउन द line. Once exam get finished, immediately result आएगा, then we will discuss about the result part also. Okay, so मूवी है ना, एक दूसरी मूवी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी चक दे इंडिया। 70 मिनट है आपके पास, जी लो अपनी जिंदगी। तो आपके पास 180 मिनट्स है, जी लो अपनी जिंदगी। जितनी भी प्रिपरेशन की है उसको 100% अच्छे तरीके से यूज करना। अप्लाई योर बेस्ट से। पूरे साल अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की है, बट अगर आपने 180 मिनट्स में अच्छे से परफॉर्म किया, सो गेम कैन बी चेंज, यू कैन हिट गुड स्कोर, यू नेवर नो। यस, सो बेसिकली दिस इज व्हाट this session about. So again, the cleaner the worksheet, the faster you are. जितना रफ वर्क कम करोगे उतना जल्दी अपना पेपर खत्म होगा. So now it's time for the Q&A. I'm done with my session. So I want to tell something. Okay, during the examination we have to keep our audio on till the exam gets over. You have to अपना आपका कैमरा जो है कैमरा ऑन होना चाहिए, एंड सी द टेक्निकलिटीज जो उन्होंने सेंड की हुई है। सारे एग्जाम जैसे अभी रिसेंटली सारे बीबीए के आईपीएम के एग्जाम्स हुए वो सारे ऑनलाइन हुए, एनपैट वगैरह के एग्जाम्स एंड ऑल, एंड आपका सिम्बायोसिस का एग्जाम। सो फॉर ऑल आई मीन ये सारे एग्जाम्स में भी सारे टेक्निकल चीजों के हिसाब से लाइक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी अरेंज करना था, सेम वे आपको भी मेल आया होगा क्या क्या चीजें अरेंज करनी है। यस, इंटरनेट के लिए यू कैन यूज मोबाइल डेटा। अगर वो उसकी स्पीड देख रहे हैं ना, मिनिमम स्पीड क्या है वो उन्होंने मेंशन की होगी आप आपके इस पे। फर्स्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग so that we can have a detailed discussion. Okay.